Today we are starting with a fresh subject in module number 1, that is jurisprudence, interpretation and general laws, that is JIGL. Now onwards I will not call the whole name of the entire subject. We will now call it as JIGL. So that is jurisprudence, interpretation and general laws. Technically, before I start the subject, we need to understand that why the subject is needed for us as a company secretary student. That's point number 1. 2, we need to understand the content of the subjects. We need to understand the content of the chapters, and at the same time we also need to understand the weightage of various chapters, how scoring it is, what kind of paper pattern will come, and etc. So today we are going to discuss in detail about the subject and its and the contents. So let's begin. सबसे पहले when I start with the subject, the most important question which everybody is asking is, sir पहले बताओ चैप्टर कितने हैं, how many chapters are there? So guys, first of all, the entire subject includes 17 chapters. How many? 17. 17. ठीक है, 17 चैप्टर है अपने को. सो हमें पहला ये टारगेट होता है कि हमें बस ये 17 चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए. And as you all understand that obviously these 17 chapters are divided into 100, 100 marks portion. So paper is gonna be from these 17 chapters. So we should know the individual weightage of each chapter in detail, and accordingly we can focus which are important chapters, which are not important chapters, and etc. So to commence, the first talk would be on the content and then the weightage. So let's start with the content. Let me write the whole name of the subject once for all. It is jurisprudence, interpretation and general laws. So it is like this. So jurisprudence का J, interpretation का I, और general laws के लिए G और L. I repeat, general laws के लिए G और L. So that is JIGL. Now what is the importance of the subject to any company secretary student? By the way, this part of the subject, which is only and only jurisprudence, is newly added. The interpretation and the general laws are since long time. They are since that long since I am teaching. So guys, I guess if I am not wrong, if I started teaching CS maybe say in the year 2003, and since 2003 we have these chapters. I repeat, since 2003 we have these chapters on interpretation and general laws. Only and only jurisprudence is something which was added new. Jurisprudence is something which is added new, and it was only added in the new syllabus, and hardly few attempts have happened
On jurisprudence, the first attempt which happened was on June 2019, then December 19, and there was not June 2020. So directly the third attempt happened in December 2020. And guys, technically if you see, you will be the fourth batch appearing for JIGL. Now, already as I have mentioned, even in my induction lecture, that this subject is a very static subject. And when I say that it is a static subject, means it is not gonna change. And the advantage to a student that if the subject is not gonna change, you are not gonna study the amendments. And if you are not gonna study the amendments, more or less the student is at peace कि मालूम है यार सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होने वाला है. So that is the reason that this is always one of the most preferable law which is to be taught at the start of the batch. Because अगर हम एक कोई अमेंडिंग स्टैट्यूट स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं तो उसमें एक रिस्क भी होता है कि यार अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसको वापस पढ़ाना पड़ता है. एटलीस्ट जीआईजीएल में ये शांति है कि पढ़ाने के बाद वो हेडेक नहीं है कि ये बदल जाएगा और उस बैच को वापस पढ़ाना पड़ेगा. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाट वी गेट इन जीआईजीएल. And that is also one of the most primary reason that even in teaching this subject is preferred in the beginning or maybe at the outset. Going to the next thing is, as I told you, jurisprudence was added very recently in the course content of CS. We need to understand what is jurisprudence and what is the need that a company secretary should have the knowledge of jurisprudence. हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. So let's talk about the first word in detail today. That is jurisprudence. As you all understand that the judiciary of the country is vested in the courts. Courts are always independent, and the judiciary system of India is one of the very important pillar in the structure of the constitution. It is a very important pillar in the structure of Indian constitution. भारत के संविधान में यह बहुत important हिस्सा है. Now, if you see, and if I, what are the three pillars? What are the three pillars in the structure of Indian constitution? What are the three pillars in the structure of Indian constitution? I know many of you will be able to answer because many of you have learned Constitution of India in CHEET from me only. Can anybody tell me what are the three pillars of Indian constitutional structure? Legislative, executive and judicial. क्या बात है ऐश्वर्या. Legislative, executive and judiciary. So let me start with this content what Aishwarya has given us the insight on, that the three pillars of the Indian constitution are legislature, executive and judiciary. These are called as the three pillars of Indian constitution. By the way, this is covered in the fundamental structure of Indian constitution.
And when I say that it is covered in the fundamental structure of the Indian Constitution, we can amend certain articles of Constitution. We can amend certain amend means to change. We can amend certain articles to Constitution, but can we amend the whole structure of the Constitution? Can we do that? No, sir. No. Obviously no. We can amend few articles. Likewise, if you must have recently noticed, there are so many articles which got altered in the recent times. Can you give me few examples of articles? Article 370. Yes, Devyansh. What was there in the Article 370, Devyansh, if you can highlight? Jammu and Kashmir had a special status, Correct. which was scrapped after that amendment. Absolutely correct. So you've seen the Jammu and Kashmir Consolidation Law, which is nothing but an amendment to Indian Constitution. Anybody else? Any latest amendments, whatever you remember on Indian Constitution? One is the Jammu and Kashmir, which Devyansh has already spoken about. Any other amendment which you remember latestly? Nobody? कोई और अमेंडमेंट जो अगर आपको 377 article. समलैंगिक संबंध. हाँ देवयांश, याद है मुझे वो 377 से वो भी याद आ रहा है कि दादर ब्रांच में तेरा एक वीडियो बनाया था हमने. आई गेस आई वॉज देयर, रईस वॉज देयर एंड मे बी शुभम वॉज देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड रईस तू था उस दिन? And I guess recently, I think so, after results, Raiz had forwarded me that video in which Devyansh was made a girl, and that is the reason Devyansh मुझे समझ में आ रहा है कि तुझे आर्टिकल 377 क्यों याद आया. But you are absolutely correct. After a long time, I get this opportunity to pull your leg, yaar. So, Article 377, guys, absolutely correct, was amended to include the same-sex relationships. So, that is also one of the amendments of the Constitution. But let me tell you now in detail, what am I teaching you? We all know that these three pillars are the most essential pillars in the fundamental structure of the Indian Constitution. अच्छा, क्या मैं अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट लाऊं, देखो मैंने एक बात बताई आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अमेंड करने का पावर हमको दिया है संविधान ने, पर संविधान का स्ट्रक्चर बदलने का पावर हमको संविधान ने शाबाश नहीं दिया है. अगर मैं ऐसा अचानक कानून लेके आऊं कि आज के बाद इंडिया में जुडिशरी सिस्टम, मतलब कोई अदालतें नहीं होगी, कोई जज नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, कोई फैसला नहीं आएगा, तो चलेगा ऐसा? No, sir. No, sir. Can we even think like this? We can't, because it is associated with the fundamental structure of the Indian Constitution. तो उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते. सो एक्चुअली स्पीकिंग, ये तीनों पिलर्स का क्या काम है पहले वो समझते हैं. व्हाट इज द जॉब ऑफ ऑल द थ्री पिलर्स? लेजिस्लेटर, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है कि लेजिस्लेटर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज लोकसभा कॉल्ड एज. मैंने ही पढ़ाया आपको लोकसभा को क्या बोलते हैं. House of people. करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल. एंड राज्यसभा को क्या बोलते हैं? Council of State. काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. आउट ऑफ विच दोनों हाउस में से किसको लोअर हाउस बोलते हैं और किसको अपर हाउस बोलते हैं?
लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. Correct. Lok Sabha is the lower house and Rajya Sabha is the upper house. Absolutely correct. तो लेजिस्लेटर मतलब लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है इनका फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन लोकसभा एंड राज्यसभा? इसका फंडामेंटल ड्यूटी है टू मेक द लॉ. बताओ भाई, उनका फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू मेक द लॉ. मतलब ये लोकसभा में जो एमपी सिलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए होते हैं, तो एमपीज और एमएलए का जो काम होता है वो क्या होता है? कानून बनाना. इनका काम होता है कानून बनाना, टू मेक द लॉ. लेट मी ऑल्सो आस्क यू हियर अ सिंपल क्वेश्चन. डू यू इवन थिंक, sorry to say this and going on record to say this, but that is the destiny of this country. I cannot help. Sometimes when I talk about this I feel really bad, but then there is no other option. We have to talk on that. Do you even feel that MPs and MLAs are that much qualified to make a law? क्या उनमें उतनी समझ है या क्या उन्होंने उतनी पढ़ाई की है कि वो कानून बना सकते हैं? नो सर. 100% आपको श्योर है वो बना नहीं सकते ना? यस सर. और फिर भी वो पॉलिटिक्स खेल के जीत जाते हैं. बट टेक्निकली उनका काम है कानून बनाना. अब एक होता है कि या तो उनके पास उतनी समझ ही नहीं है कानून बनाने की, विच आई फुल्ली अग्री. दूसरा, मैं ये भी जानता हूं कि आधे से ज्यादा टाइम तो वो लोकसभा और राज्यसभा छोड़ के भाग जाते हैं, अंदर चिल्लम चिल्ली करते हैं, बेंच पीटते हैं, आदमी को पीटते हैं, जूता फेंकते हैं, चप्पल फेंकते हैं. अरे काम कब होता है? So sometimes I also believe that they don't have sufficient time even to discuss on the law. Let me give you an example. Let me give you a recent example. You know what? In the entire country, since last almost 2 months, farmers are on strike. Yes sir. क्या आपको ऐसा कुछ पता है कि फार्मर्स, हमारे देश के भूमि पुत्र, स्ट्राइक पे बैठे हैं? क्या आपको ये बात पता है? Yes sir. Yes sir. अच्छा, ये क्या हो गया इनको? भूमि पुत्र को क्या हो गया? इनको क्या लग रहा है ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? व्हाई आर दे डूइंग स्ट्राइक? Sir, they are against that Krishi Kanun law. Oh, they are opposing the law. तो जब लॉ अगस्त में पास हुआ था तब क्या ये सो रहे थे? भाई लॉ तो अगस्त में पास हो गया था ना. तुमको दिसंबर में क्या हुआ? समझो somebody has done something wrong to me, तो मैं सामने इमीडिएटली रिएक्ट करूंगा ना. क्या हुआ? किसी ने वो लोग को प्रोवोक किया होगा ना, ये सब अभी समझाया होगा इन सब. ओके, वॉट एवर द रीजन में, बट आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग कि अगर आपने फार्मर के बेनिफिट के लिए कोई कानून लाना था तो इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ इट वुड हैव बीन डिबेटेड इन द लोकसभा एंड राज्यसभा. डू यू अग्री और नॉट? अगर आपको कोई कानून लाना है तो इट वुड हैव बीन डिबेटेड इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड डिबेट के बाद जो भी हल निकलता वो कानून सबको मंजूर होता, क्योंकि वो डिबेट होने के बाद, सबको कन्विंस करने के बाद वो कानून आया होता. बट देन व्हाट हैज हैपेंड इन आवर कंट्री इज that all the 3 farm bills, let me call them bills, क्योंकि लॉ पास होने के पहले उसको बिल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बोलो. सो कोई भी कानून पास होने के पहले उस कानून को हम क्या पुकारते हैं? बिल. व्हाट डू वी कॉल? बिल. BILL बिल. तो जब ये 3 फार्म बिल्स
पार्लियामेंट में रखे गए थे, ऑब्वियसली ये तीनों फार्म बिल हमारे देश के लोकसभा और राज्यसभा ने ही पास किए हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में हमारे और आपके प्रतिनिधि तो है, हमने ही तो उनको चूज करके भेजा है कि भाई तुम देश की सेवा करो, हम अपने घर की सेवा करते हैं. Because you and me are busy in our own lives, we have appointed them. Guys, can you enter politics at this age? No, it is your age to study and become something in life. Guys, can I enter into politics? No, because my job is to teach and make a bright future for this country. So you and me have appointed these guys that boss, you are our representatives. You are our representatives. Go there and do the job on our behalf. So imagine when these three farm bills were presented in the Lok Sabha and Rajya Sabha, they were passed without discussion. Can you imagine what am I trying to say? They were passed without discussion. क्या ये सही तरीका है कोई लॉ को पास करने का देश में? No, sir. तो तुमने उधर लोकसभा राज्यसभा काहे को बना के रखा है? तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं, तुमको इतना एमपी अलाउंस मिलता है, इतना एमएलए अलाउंस मिलता है, ये अलाउंस क्या चीज के लिए दिया जा रहा है फिर तुमको यार? मतलब nobody understands only, so it is wrong. There has to be an extensive debate in detail all day, maybe on the second day, maybe on the third day, maybe on the fourth day, maybe for a week, maybe for 2 weeks. And when all political parties are ready, that is the time you should have passed the law. हमारे यहाँ तो मस्त होता है, बीजेपी लॉ लेके आती है, कांग्रेस चली जाती है बाहर, वॉकआउट. क्या बोलते हैं उसको, टर्म को क्या बोलते हैं? कांग्रेस चली जाती है बाहर, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ममता बनर्जी वाली बंगाल वाली पार्टी, वो भी चली जाती है बाहर. वो बोलती है नहीं नहीं हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, हम मालूम नहीं, हम बाहर. माने कांग्रेस बाहर, टीएमसी बाहर, सब ऑपोजिट वाली पार्टी बाहर. अब जो अंदर बचे वो तो सारे बीजेपी वाले. फिर वो स्पीकर साहब बोलते हैं चलो वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे. तो आपको क्या लगता है वोटिंग में कौन जीतेगा? भाई उसके ही तो लोग अंदर बचे हैं, बाकी तो सब वॉकआउट हो गए. और फिर वो लोग क्या पब्लिश करवाते हैं सबको, ये लॉ हमने अनअपोज्ड पास करवाया. तो अनअपोज्ड ही होएगा ना, अपोज करने वाला अंदर था कौन? Are you understanding the problem in our country? Yes, sir. No, this is a genuine problem in our Indian system, Indian constitutional system. But what to do? अब इस वजह से होता क्या है, इनका काम तो है लॉ बनाना. एंड एज वी हैव अंडरस्टूड कि ये लॉ बनाने के लिए मैं तो ये बोलूंगा और हक से बोलूंगा कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है. क्या आप मानते हो ये बात? ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है लॉ बनाने के लिए. Yes, sir. मैं एग्जाम्पल देता हूं. बाय द वे इंडिया में 127 लॉ है. मुझे ये 127 लॉ आते हैं, मैं उसको पढ़ाता भी हूं. मुझे 127 कानून पूरे मुंह ज़बानी आते हैं, मैं उसको पढ़ाता भी हूं. अगर एक बार मेरे जैसा आदमी भी लोकसभा या राज्यसभा जाए तो कम से कम कानून समझ तो पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? Yes, sir. समझ पाएगा. बट अपन लालू, अगर सॉरी टू से, अगर हम लालू प्रसाद यादव जी को भेजेंगे तो क्या वो कानून समझ पाएंगे? फिर भी हमारी जनता ऐसे लोगों को जिताती रहती है. I hope it is very very clear to all of you. You know what? Yes, sir. There is a very big problem, and the problem is in the fundamentals of our country. Nobody understands what is the role of a MLA or a MP. सबको क्या लगता है पता है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करने के लिए बने. पीपल थिंक कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करने के लिए वो बने.
which is wrong. What is the primary purpose of becoming a MLA or a MP? To make a law. To make a law. Are they even competent enough to make a law? No, sir. And I'm sure each one of you will be agreeing to me कि नहीं सर, ये लोग लॉ नहीं बना सकते. And I accurately know that कि वो लॉ नहीं बना सकते. और दूसरा, मैं ये भी बोल सकता हूं कि उनके पास समय किधर है. They don't have time to discuss and debate. खाली एक दूसरे पे एलिगेशन डालने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, मेन काम तो करते ही नहीं है. और पता है क्या, रिसेंटली देयर वाज वन स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड. आई गेस many of you have learned that statistics with me only when we were doing that CHEET का batch. And if I'm not wrong, it was Aishwarya, Nishi, Kedar, Dishita, Serish, Iram, all of you were in the same batch. याद है जब हमने वो करंट अफेयर्स में पढ़ा था दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा का सेशन. याद है हमने करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोकसभा का सेशन था वो, और हमने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था. एनीबडी रिमेंबर्स दैट? किसी को याद आ रहा है हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ये कि CHEET गया और हम भूल गए? क्या बात है, किसी को याद ही नहीं आ रहा है? बट वी डिस्कस दिस इन द क्लास इन द करंट अफेयर्स बाय द वे. But you know what, even in that productive session, what happened is that many laws were passed. Undoubtedly, I don't doubt it. But then they were passed without debates. Even today, why farmer associations are showing so much agitation? उनको किस बात का गुस्सा है पता है? कानून आया उसका गुस्सा है क्या? Do you even know किस बात का गुस्सा है? No, sir. Can anybody tell me in one line कि उनको किस बात का गुस्सा आया है? Sheet खरीदा एकदम. नहीं. फार्मर्स को किस बात का गुस्सा है? नहीं रईस, it is not even connected to minimum support price. Do you? No, Siddhant. Let me tell you. But still a good try, Siddhant, because you are very close to it. But let me tell you. Yeah, we have somebody. Geeta, yeah? Sir, no one asked them about their opinion. Very good. क्या बात है? Lovely answer. Yeah, please go ahead. You were saying something. And? हाँ सर, तो बस उनको इस बात का गुस्सा है कि हमने उनको बिना पूछे उन लोग ने लॉ पास कर दिया. Correct. They were unaware about it. करेक्ट. याद रखना बॉस, लाइफ में एक बात सिखाता हूं आपको, है ना, आपको किसी को बोल के आप कुछ करोगे ना तो उसको कभी उतना हर्ट नहीं होगा जितना बिन बताए करोगे. रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, ये हर बात में होता है. सपोज मेरा अक्षय है इधर, अक्षय गायकवाड़. अक्षय, सपोज मैं तुझे बोल के तेरे साथ, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यू आर फ्रेंड्स, आई वॉज मे बी नॉट योर टीचर एंड मे बी वी वर ऑफ द सेम एज, और मैंने तेरे को बोल के बोला देख अक्षय यार तेरे साथ मेरे को ये प्रॉब्लम है एंड लेट्स नाउ स्टे फार, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, and you also clear things, I also clear things. It would be much better rather than unnecessary. I stop blocking you. You know, you block me. I talk bad about you somewhere. You talk bad about me somewhere. Don't you think so? That is much better, much worse things. Even real life में भी ऐसा होता है. हम कितनी बार किसी को बिना बताए उसको ब्लॉक कर देते हैं. अरे भाई आप लोग ने भी काफी लोग को ब्लॉक किया होगा कहीं ना कहीं. भाई सबको लोग सताते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, कोई त्रास देता है, आप लोग ने भी बिना बताए कितनों को ब्लॉक किया होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फार्मर्स को इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा है कि जब लॉ उनके लिए बन रहा था तो उनको कंसल्ट क्यों नहीं किया गया.
इवन आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जाम्पल विच इज कनेक्टिंग टू इट. याद है जब हम आर्मी के लिए प्लेन्स लेने वाले थे तो हमारी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स ने क्या बोला कि बॉस तुम प्लेन किसके लिए ले रहे हो, हमारे लिए ना, तो हमको तो कंसल्ट करो कि हमको क्या प्लेन चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यही नहीं पता कि मेरी एयरफोर्स को चाहिए क्या, और मैं उधर मिनिस्टर बन के ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं एयरफोर्स में कौन सा प्लेन लाऊंगा. हु एम आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यार. Yes, sir. बॉस मैं 5 साल के लिए मिनिस्टर बना हूं, हो सकता है उसके पहले मेरा तबादला हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, पर जो आदमी उधर एयरफोर्स में है वो तो लाइफ टाइम एयरफोर्स में ही है. वो बचपन से एयरफोर्स ज्वाइन करके बैठा है, और जो एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स हैं, जो चीफ कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी जीवन एयरफोर्स में डाल दिया है. तो हु इज द राइट पर्सन टू लेट यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरफोर्स, द एयरफोर्स और द मिनिस्टर? तो तुम एयरफोर्स को बिना कॉन्फिडेंस में लिए तुम उनके लिए प्लेन मंगा रहे हो, क्या फायदे के वो प्लेन उनके लिए? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. क्योंकि एयरफोर्स को कौन से प्लेन चाहिए वो एयरफोर्स को पता होगा. तुम कौन होते हो भाई शाने? सो सेम वे आई टेल यू नो व्हाट, ठीक है, तुम्हें आई गेस मुझे फार्मर से काफी लगाव है, शायद आपको भी उतना ही लगाव होगा, आई डोंट डाउट. बट टेल मी वन थिंग, जेन्युइनली फार्मर का जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है, क्या वो आपको और मुझे पता होता है क्या? नहीं. No, sir. Only they know. Only they know. No, sir. See, you know what? Life में everybody has a problem. But do you actually try to? आप किसी का प्रॉब्लम सुन भी लेते हो, अगर एक बार सुन भी लिया तो एक्चुअली क्या आपको समझ में आता है कि नहीं एक्चुअली वो बंदा क्या he should be going or he would be going through? No. Till the time you don't step into his shoes. And same problem comes here. That till the time the farmers were not heard and you have passed the law for them, and now even if the government is ready to make a committee, they are saying we will not participate in the committee. First you scrap the law, then make a committee in which we will participate, then we will draft the new law and then you pass it in the parliament. अभी लोग जिद पे अड़ गए और सबको पता है. Sir, that's right ना. क्या? सर वो सही तो बोल रहे हैं. कौन? फार्मर्स लोग. या बट दे आर नॉट इवन रेडी नाउ. मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ कौन राइट और कौन रॉन्ग, बिकॉज इन लाइफ एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन and we have to respect everybody's opinion. But my concern is that sometimes the legislator is not competent and do not have adequate time, sometimes do not have adequate knowledge to cater to the problems. जब ये होता है तो लेजिस्लेटर किसके पास जाता है मालूम है? बोलो बोलो, लेजिस्लेटर किसके पास जाता है? जुडिशरी के पास जाता है. तो यू नो व्हाट, ये सब लोग को बहुत बड़ा गलतफहमी है कि एग्जीक्यूटिव इज द सेकंड आर्म. ये गलत है. आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा आर्म क्या है? द सेकंड आर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी एंड द थर्ड आर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जीक्यूटिव. हमेशा याद रखना ये बात. तो द सेकंड आर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी. तो अब लेजिस्लेटर की नीचे गैस जला तो अब लेजिस्लेचर क्या बोलता है? एक काम करते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तू बता ये राइट है कि रॉन्ग है लॉ. मीन्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द वैलिडिटी ऑफ द लॉ. यस और नो? Whether the law is valid or not will be decided by Constitution of India. No, it will be decided by Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है सी वी विल डिसाइड वेदर द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट. वी कैन डिसाइड दैट. बट सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलता है. सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है कि बॉस मैं ये तो बता दूंगा लॉ वैलिड है कि नहीं है, पर लॉ
के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट फार्मर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। क्या ये बात मानते हो तुम? डू यू अग्री कि सुप्रीम कोर्ट के जज लॉ वैलिड है कि नहीं ये बता सकते हैं, बट लॉ के अंदर जो फार्मर्स के पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या वो पॉइंट्स राइट है कि रॉन्ग है, वो कैसे बताएंगे भाई? He will not be able to say that. And therefore Supreme Court refuses to comment. I repeat, Supreme Court refuses to comment on the farm laws. They say if the matter comes to us, we will only and only decide on the validity. And because we can only decide on the validity, we will request the center to set aside the law, have a fresh round of discussion, and then come out with something better, which even farmers and their representative body should agree. So judiciary decides the validity of the law, but it is not necessary that judiciary is always right, and it is also not it is also imperative to note that judiciary does not know everything. उनको हर चीज में ज्ञान थोड़ी ना होता है. They don't have knowledge in everything. How can they comment on everything? आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है तो क्या पूरा वर्ल्ड पढ़ के बैठा है क्या? तो हर चीज के ऊपर वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते. We have seen certain tough times for Supreme Court judges in recent times, starting from Sabrimala case. If you remember the Sabrimala case, whether women were allowed in the temple main sanctum. Do you remember the Sabrimala case? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now that was tough questions for a Supreme Court judge to answer. The constitutional validity of the Shri Ram Mandir, that is Ayodhya, on the Shri Ram Janma Bhoomi, are all difficult rulings or difficult questions which are posed to the Supreme Court of this country. And I always believe that Constitution can decide the validity of the law but not the contents of the law or contents with regards to parties. And therefore जुडिशरी वो क्या करता है, वो बॉल पास करता है. वो बोलता है देखो बॉस, आई विल गिव अ ऑर्डर और आई विल गिव अ जजमेंट. आई विल गिव अ ऑर्डर और आई विल गिव अ जजमेंट, बट उस ऑर्डर या जजमेंट, वन सेकंड गाइस. Yes, sir. Yeah, so I said, Yes, sir. I was saying judiciary gives the order or the judgment, but does the judiciary have that time to implement the order? क्या जज आपको घर पे आके अरेस्ट कर सकता है क्या? No, sir. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसके लिए अभी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट रखते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ IAS, IPS, IRS, IFS, etc. That is needed. Now they need these category of people to make sure that the law is implemented. मतलब अभी एक बात समझो, if you understand these points you will understand that the validity of the law, I repeat, law बनाने का जवाबदारी किसका है? लेजिस्लेटर. लॉ को, आई रिपीट, लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसकी जवाबदारी किस पे है? नो, you are absolutely wrong then. I repeat my question. It is whose responsibility to make the law? Legislature. It is whose responsibility to implement the law? Executive. And it is whose responsibility
to decide the validity of the law? Judiciary. So these three are made with different angle. इन सबका पर्पस अलग अलग है. अब यहाँ पे वेयर इज आवर सब्जेक्ट, हम भूल गए अपना सब्जेक्ट पढ़ना है ना अपने को. तो इन सब में अपना सब्जेक्ट किधर है? तो अपना सब्जेक्ट ये है कि जूरिस्प्रूडेंस, ये रहा अपना सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस. मतलब it is nothing but that judiciary should act prudently. I repeat, ये बोलता है जुडिशरी शुड एक्ट प्रूडेंटली. तो जुडिशरी को अगर प्रूडेंट एक्ट करना है तो जुडिशरी को पहले तो लॉ इंटरप्रेट करना पड़ेगा. what does the law mean? Then judiciary also should have that bigger outlook कि what is actually happening in the real society, and then see whether can we make a law to regulate that or whether you don't want to make a law to regulate that. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा. आपको पता है इंडिया में एक जमाने में हमने खुद एक कानून पास किया था कि गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप्स आर नॉट अलाउड इन अवर कंट्री. ये कानून पास करने वाले भी हम ही थे. और एक दिन हमने कानून पास किया कि गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप्स आर अलाउड इन अवर कंट्री. क्यों? एक ही देश दो अलग अलग टाइम्स में दो अलग अलग कानून कैसे पास कर देता है? What is it? What is it? Their thoughts towards it changes. Please, can you repeat? मतलब उन लोग के थॉट्स वो चीज के बारे में बदल जाते हैं. किनके थॉट्स बदलते हैं? लोगों के थॉट्स बदलते, पर लोग थोड़ी ना लॉ बना रहे हैं. लॉ तो जुडिशरी बना रही है ना. लोगों के थॉट्स बदलने से जुडिशरी का क्या लेना देना? तो एक जमाने में एक जज वो बोलता है ये गलत है और दूसरे जमाने में वो दूसरा जज ये बोलता है ये बात सही है. ऐसा क्यों होता है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? पहले अगर मेरा सवाल समझेगा तो मैं सब्जेक्ट को समझा पाऊंगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, ईच वन ऑफ यू? देखो फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, या प्लीज विशाल. सही लगा वो बोला उन्होंने उनको तभी के लिए जो सही लगा वो उन्होंने बोला. करेक्ट. उन्होंने तभी के लिए जो सही लगा वो उन्होंने ओपिनियन दिया अपना, या ऑर्डर दिया, या अपना जजमेंट दिया, वॉट एवर इट इज. बट डू यू ऑल थिंक दैट द टाइम्स चेंज, इवन द आउटलुक ऑफ द जजेस चेंज? क्योंकि जजेस भी तो यहीं रहते हैं ना, इसी दुनिया में, इसी प्लेनेट में, हमारे जैसे ही खाना पीना करते हैं, हमारे जैसी पार्टियां अटेंड करते हैं. आपको पता है एक जज ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट दिया, बहुत मजा आया उनकी कमेंट सुन के. ध्यान से सुनना. ये बात है, मुझे अभी भी याद है हमारे, आई डोंट रिमेंबर द month. Honey, I ask her. I don't remember the month. Anybody who is a Jain here and remembers which month Paryushan were? Paryushan जो जैन का फेस्टिवल होता है वो कौन से महीने में था? अच्छा, it was in August. Paryushan was in August this time. Okay, so it was in August. Okay, so let me remind you this. It's a very interesting remark by a very honorable judge. Right? ध्यान से सुनना, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पर्यूषण के टाइम पे जैन फास्ट करते हैं. वो जैन लोग एक्चुअल जैन तभी बनते हैं वो 8 दिन के लिए. काफी लोग ऐसे भी जैन होते हैं, काफी लोग जीवन भर जैनिज्म का, अच्छा है इधर भी, काफी लोग जैनिज्म को जेन्युइनली उसका पालन करते हैं.
और काफी लोग दिखावे के लिए बस उस 8 दिन को जैन बन जाते हैं। अब हुआ ये कि उसके बाद क्या होता है कि काफी जैन टेम्पल्स में, आई रिपीट, काफी जैन टेम्पल्स में कुछ फंक्शन रखा जाता है या कुछ फास्ट रखा जाता है। उस फास्ट में होता है कि एक बार आप खा सकते हो, बट दैट फूड डज नॉट हैव ऑयल, सॉल्ट एंड एक्सेट्रा। और वो फास्ट का खाना मंदिर में सर्व किया जाता है और लोग वहां पे खा सकते हैं। पीपल कैन गो टू द टेम्पल एंड हैव द फूड, बट वो ऐसा होता है फास्ट कि आपको एक बार बैठ के खाना है। जितना आप एक बार बैठ के खा पाएंगे उतना ही आप खा सकते हैं। उसके बाद जीवन मतलब उस दिन भर आपको खाना नहीं मिलेगा। अब मजे की बात ये आई कि अपने सीएम उद्धव ठाकरे साहब के पास सारे जैन मंदिर अपना अपना दुखड़ा लेके गए कि भाई हमारा ये जो, उसको हमारे में गुजराती और जैन में ही बोलते हैं आम्बिल की ओरी। ओरी मतलब दैट रन्स फॉर अराउंड 9 days। सो 9 days तक आपको ऐसा खाना खाना है, तो प्लीज अलाउ अवर टेम्पल्स टू एटलीस्ट स्टार्ट सर्विंग फूड टू ऑल दोज हु आर डूइंग दिस फास्ट। तो उद्धव साहब बोलते हैं, उद्धव साहब माने हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब। सो माननीय सीएम उद्धव ठाकरे साहब ने बोला नहीं नहीं, हम नहीं चालू करने दे सकते। बड़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाई, नहीं हो पाया, मिन्नतें की, नहीं हो पाया। फाइनली जैन टेम्पल्स ने डिसाइड किया, लेट द कोर्ट डिसाइड। तो हम कोर्ट के पास चले गए। अब कोर्ट में फाइनल हियरिंग था, हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट है वो, बाय द वे, मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग है। और तब तक कैसा था, 1 अगस्त से आपको याद होगा रेस्टोरेंट को अलाउ कर दिया था 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। आपको याद होगा रेस्टोरेंट्स। अब रेस्टोरेंट भी तो खाना परोसते हैं, तो आप रेस्टोरेंट में खाना परोसने को अलाउड है और मंदिर को खाना परोसने को अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, राइट टू इक्वालिटी। डिड आई हैव आई टॉट यू द आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी? कोई मुझे याद दिला सकता है मैंने कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? आर्टिकल नंबर क्या है राइट टू इक्वालिटी? 14 to 18। लवली। तो आर्टिकल 14 to 18 इज राइट टू इक्वालिटी। तो अगर होटल को खाना परोसना अलाउड है तो मंदिर को भी तो खाना परोसना अलाउड होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर अपनी फंडामेंटल राइट कोई छीनता है तो हम क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं? क्या बात है, रिट पिटिशन लगाते हैं। और टोटल कितने टाइप की रिट्स होती है मैंने ही सिखाई। कितने टाइप की रिट? क्या बात, सी सीट में सिखाया हुआ काम आता है। 5 टाइप्स की रिट होती है। तो हमने रिट लगाई हाई कोर्ट को कि हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ के जो काउंसिल थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल खड़े थे, वो जज को क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे थे पता है? ध्यान से सुना, बहुत मजे की बात है। गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे, आप जानते हैं उद्धव ठाकरे को? तो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो काउंसिल खड़े थे, वो जज साहब को क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते जज साहब, इट इज इन दिस पेंडेमिक to allow the temples to serve food will increase the infection rate in Maharashtra। तो जज ने बोला, तो पहले वो सुना, पहले पूरा उसने पूरा बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ बोला। दूसरा बोला कि ये जो फास्ट है उसका खाना तो जैन लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं, तो उसके लिए मंदिर को ये सब करने का क्या जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लंबा चौड़ा अपना ज्ञान दिया। लर्नड हाईकोर्ट जज ने, मुंबई हाईकोर्ट, अपना क्या कमेंट दिया मालूम है? कि बॉस, येस्टरडे नाइट आई वॉज पासिंग बाय ए रेस्टोरेंट। सुनो, जज का ओपन कोर्ट की बात है ये। जज बोलता है येस्टरडे नाइट आई वॉज पासिंग बाय ए रेस्टोरेंट। उसने रेस्टोरेंट का नाम भी बोला, एरिया भी बोला देयर वॉज ऑलमोस्ट अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 150 एंड मोर देन 300 पीपल वर देयर, इवन स्टैंडिंग ऑन द बार काउंटर, and more than 100 people were waiting outside. Can't you see that hotels are almost functioning more than 100% strength? Then if hotel can function 100% strength, why can't temples? At least they can maintain social distancing as well. Means, I hope you understood what I mean, that jurists ने
बहुत प्रूडेंटली एक्ट किया। आपको समझा मैंने क्या बोला? जूरिस ने बहुत प्रूडेंटली एक्ट किया कि बॉस तुम अगर होटल को बोल सकते हो तुम खाना खिला सकते हो कस्टमर को, कौन सा होटल है जिसने टेबल दूर दूर रखे? सब तो चिपका चिपकी करके भर भर के खिला रहे पब्लिक को। वीकडे जाओ कि वीकेंड, उतना ही रश मिलता है, ऊपर से बाहर वेटिंग है। तो मंदिर के ऊपर रेगुलेशन क्यों? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जुडिशियरी को क्या एक्ट करने की जरूरत है? बहुत प्रूडेंटली एक्ट करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली आपको मालूम है, रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपको पता है आजकल ये जो फीमेल्स के ऊपर कोई अत्याचार होता है या कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का केस होता है या फीमेल्स के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है या फीमेल्स के ऊपर कोई ईव टीजिंग का मैटर बनता है, तो हाई कोर्ट में जज जो होते हैं वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। डू यू बिलीव और नॉट? ऐसा तो नहीं ना कि जज सिर्फ मेल ही होते होंगे, जज तो फीमेल भी होते होंगे। अब कितनी बार ऐसा देखा गया है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, these are not my words, these are words of honorable supreme court of my country. And what did supreme court say? supreme court ने बोला कि boss sometimes we have observed that judges are gender biased. judges are gender biased. मतलब अगर तुम्हारा नसीब खराब है, तुम्हारा मामला अगर फीमेल जज के पास है तो फीमेल जज तुमको 5 साल की सजा सुना देती है, और तुम्हारा मामला अगर मेल जज के पास है तो वो तुमको बाइज्जत बरी कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाई ये तो गलत है ना कि ये सही है? और दूसरा, जज चूज करना भी अपने हाथ में नहीं है, और तीसरा, इंडिया में हम जज बदल भी नहीं सकते। तो डोंट यू थिंक सो कि कानून के नाम पे जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ हमारे को नहीं मिल रहा है? एंड दैट्स द रीजन दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड just 2-3 weeks back that judges should act more prudently. उनको समझदारी से काम लेना है, प्रैक्टिकलिटी से काम लेना है। They have to keep in mind what is practical, what is not. एंड अगर ये जस्ट प्रूडेंटली एक्ट करेंगे तब जाके जूरिस्प्रूडेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट होगा, दैट एवरीबडी विल गेट जस्टिस। बिकॉज 2 बातें लॉ में इंपॉर्टेंट है, 1 एवरीबडी शुड गेट जस्टिस, एंड 2 जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वर्ड सेकंड वाला तो आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुना होगा आपने। Yes, sir. तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जूरिस्प्रूडेंस का ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए कि आपकी जुडिशरी प्रूडेंटली एक्ट करे, और उसका जूरिस्प्रूडेंस समझने के लिए उनको क्या क्या समझना पड़ेगा वो ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। अब यू विल आस्क मी, सर सीएस के लिए क्या काम है ये सब? चलो आपने सब्जेक्ट तो समझा दिया, बट व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस इन जूरिस्प्रूडेंस? तो मुझे बताओ, क्या हमने ये भी बोला है कि सीएस कैन एक्ट एज representatives in the court of law? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात तो सच है कि नहीं? Yes, sir. अगर एक कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव बनके कोर्ट में जा सकता है तो उसको कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पता होगा, तभी तो वो सही तरीके से अपना मामला लड़ पाएगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज और हर ओन क्लाइंट। और अगर वो सही मामले में अपना मामला सही तरीके से अपना मामला लड़ पाएगा
अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तभी जाके जस्टिस मिलेगी सबको. लेट इट बी एनी साइड का क्लाइंट, let it be a plaintiff or let it be a defendant. And therefore, as a CS, there was a need felt that a CS student should learn jurisprudence. And therefore, jurisprudence was introduced in the new syllabus of CS Executive. As I told you, you guys will be the 4th batch. To appear for this subject. And let me now tell you the contents of the subject. So is my first part of the talk very clear to all of you that why are we studying the subject and what is the subject all about? Yes, sir. Yes, sir. Everybody is clear about what is the subject all about? Yes, sir. Yes, sir. Okay, lovely guys, lovely.